Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, children, in your today's class, firstly, I will be going to inform you about how you have to maintain your fair notebook. Okay, what part of the back exercise you have to do it in your fair notebook, and then we will begin with the revision of the chapter. Okay. So children, the question answer part, the C part which is application based questions and the F part which is answer the following. You have to do these two parts in your fair notebook, okay? Like this is your fair notebook of computer. You have to maintain it. Firstly, you have to write the date on which you are doing your work. Then the chapter 1, then the name of the chapter. After that the C part will begin. Here application based questions. In your book you can see application based questions. So here you have to write firstly the question, then after that answer below it. Okay, then similarly children, you have to do the F part also, which is answer the following. So you have to write the question and answer for it. Okay, and remember one thing, you have to keep the gap between the two questions. Okay, when you will begin the next question, you have to leave one line in between the two questions. Okay, you can see in all the questions I have done the same thing. Now we are going to begin with the revision of the chapter. Okay, so let's start children. Here in the first chapter we have read about the data and information. Okay, that what is data, what is information, and we have also done the example from the day-to-day life as well, and in the context of computer also. Okay, you all know children that all the facts, figures, special characters, digits, alphabets, numbers, all these are known as data, and information is that this data is processed by processing unit CPU. It is known as information. उस data पे जो भी processing होगी, then that processed data is known as information. Okay, so you can also see the definition here. Data is a collection of raw facts and figures, and processed data is known as information. Okay, then day to day life पे based हमने example किया. After that we have done example in the context of computer also. Okay, that teacher wants to find the total score of the student in the class. So how she will find the total score, this we have done in this example. After that, data storage unit, we have read this topic, that data is stored. How children, the data that we feed in the computer gets converted into machine अंडरस्टैंडेबल कोड विच इज मशीन कोड. आपको मशीन कोड को रिमेम्बर करना है, व्हाट इज मशीन कोड. एंड कंप्यूटर चिल्ड्रन दो स्टेट्स को अंडरस्टैंड करता है, ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट. ऑन स्टेट 1 से रिप्रेजेंट होती है एंड ऑफ स्टेट 0 से. ओके, सो 1 और 0 को हम बाइनरी डिजिट और बिट्स भी बोलते हैं. और डेटा जो होता है कंप्यूटर की मेमोरी में बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, बट मेजर होता है बाइट्स की फॉर्म में. ओके, सो दीज आर द मेमोरी साइजेस गिवन टू यू इन द बॉक्स. आफ्टर दैट चिल्ड्रन वी हैव रेड द टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑल्सो. दिस इज द हायरार्की ऑफ द मेमोरी. ये आपको टेबल की फॉर्म में गिवन है. मेमोरी चिल्ड्रन इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी की फॉर्म में डिवाइडेड होती है. इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं, एंड एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं. ओके, इंटरनल मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम. एक्सटर्नल मेमोरी को हम हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड से भी सिग्निफाई करते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव रेड अबाउट इंटरनल मेमोरी. ओके, इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, इट इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज. ओके, एंड आपको पता है इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं. ओके, एंड इट इज डिजाइन टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. ओके,
फॉर व्हाट पर्पस? वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग. ओके, कंप्यूटर जब वर्क कर रहा था उस टाइम आप इंटरनल मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हो. देन इंटरनल मेमोरी में चिल्ड्रन रैम और रोम होता है. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, रैम में क्या होता है चिल्ड्रन? जो आप डेटा स्टोर करते हो मेमोरी में वो लॉस्ट हो जाता है जब आप कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हो. ओके, बट इन केस ऑफ रोम व्हाट हैपन्स, रोम में आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हो और इसमें फॉर लॉन्ग टाइम तक आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, रिटेन करके रख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज one more difference in RAM and ROM is ROM can only read and cannot be changed. ROM मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिर्फ आप रीड कर सकते हो और वो चेंज नहीं होते हैं. ओके, एंड RAM मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी को हम चिल्ड्रन सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं. एक्सटर्नल मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंटरनल मेमोरी. ओके, एंड व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इट इज कॉपीड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इनटू इंटरनल मेमोरी. इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी. अब आपने कोई भी डेटा स्टोर किया सेकेंडरी मेमोरी में तो उसमें से जब आपको डेटा को वापस से एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है एक्सटर्नल मेमोरी में इन कंपैरिजन टू इंटरनल मेमोरी. ओके, सो चिल्ड्रन हमने क्वेश्चन एंड आंसर में कंपैरिजन भी किया. यू कैन ऑल्सो सी दैट. आफ्टर दैट स्टोरेज डिवाइसेस. चिल्ड्रन स्टोरेज डिवाइसेस में हमने हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क, ये सारे टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क हमने रीड किया है. एंड ऑल्सो फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड. So all these are the storage devices we have read. हार्ड डिस्क की चिल्ड्रन स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 8 TB होती है. ओके, 8 TB तक आप डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो. ओके, और वो प्लेटर्स से बना होता है हार्ड डिस्क विच इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क. बहुत सारी डिस्क के कलेक्शन से हम एक प्लेटर बनाते हैं एंड दैट फॉर्म्स द हार्ड डिस्क. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सीडी. सीडी जो होती है इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा. इसकी मेजरमेंट होती है 4.7 इंचेस इन डायमीटर. आप सीडीज के अंदर साउंड्स, इमेजेस, वीडियोस कुछ भी स्टोर कर सकते हो और हम सीडीज को कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं विच इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी एंड इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. ओके, नेक्स्ट इज डीवीडी. डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क विच इज डिजिटल वीडियो डिस्क. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वेरी करती है फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB. ओके, नेक्स्ट कम्स द ब्लू रे डिस्क. ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी है 128 GB. आप 128 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो और आप ब्लू रे डिस्क में हाई क्वालिटी के साउंड, गेम्स और मूवीज डेटा को सेव कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द फ्लैश ड्राइव जिसको आप पेन ड्राइव भी बोलते हैं. ये एक बैकअप डिवाइस होती है. ये एक स्मॉल लाइट वेट की होती है और रिमूवेबल डिस्क होती है. आप पेन ड्राइव की हेल्प से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो. ओके, और जो फ्लैश ड्राइव है उसमें आप 2 TB तक डेटा को स्टोर कर सकते हो. ओके चिल्ड्रन, देन कम्स द मेमोरी कार्ड. इट इज ऑल्सो अ पोर्टेबल डिवाइस. ओके, इट इज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस. मेमोरी कार्ड जो होता है चिल्ड्रन वो पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर हम यूज करते हैं. जैसे कि मोबाइल फोन्स में लगाते हो आप मेमोरी कार्ड, कैमरा, डिजिटल कैमराज में, म्यूजिक प्लेयर्स में, इन सब में आप मेमोरी कार्ड का यूज करते हो और वो रिमूवेबल भी होता है. आप जब चाहो उसको रिमूव भी कर सकते हो पोर्टेबल डिवाइसेस में से. ओके, यू कैन ट्रांसफर इमेजेस, music files into a computer by using a memory card reader. मेमोरी कार्ड में से चिल्ड्रन आपको डेटा कंप्यूटर में डालना है. आपके फोटोज, म्यूजिक,
आपके कुछ भी इम्पोर्टेंट डेटा है आप उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो मेमोरी कार्ड से बाय यूजिंग द मेमोरी कार्ड रीडर। ओके, मेमोरी कार्ड रीडर की हेल्प से आप डेटा ट्रांसफर करते हो। ओके, नेक्स्ट आर कंप्यूटर पोर्ट्स, जिसको हम कनेक्शन पोर्ट्स भी बोलते हैं। अ कंप्यूटर पोर्ट इज अ कनेक्शन पॉइंट और इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एन एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस। ओके, कंप्यूटर पोर्ट क्या होता है चिल्ड्रन? वो एक आपको कनेक्शन मीडियम प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइसेस के बीच में। ओके, जो इंटरनल पोर्ट्स होते हैं चिल्ड्रन, दीज कनेक्ट डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, सीडी रोम्स। देखो इंटरनल पोर्ट्स जो होते हैं दीज आर कनेक्टेड, दीज कनेक्ट द डिवाइसेस। इंटरनल पोर्ट्स जो बने हुए होते हैं चिल्ड्रन सीपीयू में, उसमें आप सीडी रोम, डीवीडी ड्राइव ये सब कनेक्ट कर सकते हो। बट इन एक्सटर्नल पोर्ट्स यू कैन कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक मोडेम, प्रिंटर, माउस एंड अदर डिवाइसेस। ओके, सो जो एक्सटर्नल पोर्ट्स बने होते हैं सीपीयू में, उसमें आप सिर्फ जो मेन डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल डिवाइसेस, मोडेम, प्रिंटर, ये सब आप कनेक्ट करोगे। ओके, so this is the summary of the chapter. Children, we have done the fill in the blanks part also, true and false part in the chapter exercise, where you have to mark the right and wrong for the options given to you. Then application based questions, multiple choice questions. Children, we have also done match the followings. After that, answer the following questions. You have to do it in your notebook as well. And then the my activity part, where you have to complete this crossword. You have to find the answer for these hints and then you have to fill in the crossword. Okay children, so revise the whole chapter, and that's all for today's class. Thank you for watching.